What a fantastic day to host this podcast. मेरा नाम आरजे मनोज है. रेडियो सिटी पर सुबह 7 से 11 मेरा शो चलता है और आज एक बार फिर से मुझे मौका मिला है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है XLRI आने का. सो आज मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. इनका खुद का एसोसिएशन XLRI के साथ लगभग हाफ सेंचुरी का वक्त ये बिता चुके हैं और इट्स अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर रणवीर सिन्हा ए.के. राणा सर. पूरा एक्सेल कैंपस इन्हें राणा सर के नाम से जानता है, जो कि ग्लोबल प्रेसिडेंट XLRI एलुमनाई एसोसिएशन है, मेंबर ऑफ द बोर्ड, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर द टाटा हिटाची, चेयरमैन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ईस्टर्न रीजन. सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. हाउ यू फीलिंग, सर? Thank you, Manoj. I'm feeling great. Nice to see you. I only hear your voice when I'm driving. So it's good to see you in person. आई एम एक्साइटेड एंड आई एम श्योर बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग बातें आज हम आज डिस्कस करने वाले इस पॉडकास्ट पर, एंड मोस्टली अबाउट द होम कमिंग थिंग. सो सर, सबसे पहले आई वुड लव टू आस्क यू कि XLRI इंडिया का सबसे पुराना बी स्कूल है, जिसका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो दुनिया भर में मशहूर है. आपके हिसाब से XLRI का एलुमनाई नेटवर्क दूसरे बी स्कूल से कैसे अलग है? XLRI सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है और वर्ल्ड में इट इज़ वन ऑफ द 5 ओल्डेस्ट बी स्कूल्स. सो XLRI हैज़ अ वेरी रिच legacy of history, tradition and culture. And XLRI का जो pass outs हैं, alumni हैं, they have been holding very important positions in industry, in academia, in policy making, actually all over. You see, जहाँ भी कोई top person देखिएगा, जो खोजिएगा तो देखिएगा उनका एसोसिएशन XLRI के साथ ही है. Very important is XLRI was founded by Jesuit fathers, and Jesuit fathers brought in lot of rich values. So the value system of an XLRI student or an XLRI alumni is what differentiates it from any other business school in the country. So हमारे जो पास आउट्स हैं, they are always looking for integrity and excellence. Integrity and excellence are the hallmarks of XLRI alumni, and that makes us stand out in the world. सर, अगर बात करें एक बज़ जो बहुत ज़्यादा है अबाउट द होम कमिंग, एंड इफ़ इट इज़ एक्सेल का होम कमिंग तो ऑफकोर्स बातें तो होनी है. सो होम कमिंग अब एक बड़ा ट्रेडिशन बन चुका है. पहले के मुकाबले में ये इवेंट कैसे बड़ा है, बदला भी है, और होम कमिंग 2025 को इतना खास क्या बनाता है आपके हिसाब से? देखिए, हम लोगों ने ये इवेंट को कॉइन किया ताकि हम लोग अपना एलुमनाई को XLRI से कनेक्टेड रखें. और ये सिलसिला करीब 20 साल पहले हम लोगों ने चालू किया था. सो अराउंड 2005-2006 we started homecoming as a concept to bring back alumni across all batches to come to XLRI, reconnect with the institute, give back to the institute, what is happening in industry and in the real world. Because if you're teaching and you're away from the real world and there is a disconnect, then what you teach is irrelevant. So it is very important that the industry connect. And how is the industry connect done? It is through the alumni. So we bring back the alumni, and the alumni are also in important positions. They hold CXO kind of positions. So they are able to attract people for jobs. XLRI, one of the greatest factors for the XLRI student is good placements. So good placements happen through well-positioned alumni. So all these things make a real case
for starting something to keep the alumni and the institute connected. This year, 2025, is big because it's 20 years of homecoming. Apart from that, we have the batch of 1975, which is coming for its 50 years or its golden jubilee, who are coming in large numbers. So I think about 40 of them. Those days batch size was IR about 40, 45, BM about 40, 45. So out of 85, 90, 40 of them are coming. And you must understand, they are all age 70 plus, closing to 75. So they are coming in big numbers. They are celebrating their 52 years of friendship. And they are also trying to give back to the institute whatever they can in terms of some special facility or something or the other. They are also incidentally having 2 evenings of entertainment. One day they have a stand-up comedian of international fame coming on the 8th of December, along with 2 renowned singers, Rear Admiral Kannan and her husband, Vice Admiral Kannan. They are good, well-known singers. And on the 9th, they are having a Saregama night where some Saregama finalists are doing a Bollywood night. Right. So this is special this year. That sounds really exciting. सर आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज एक्सेलराई के जो एलुमनाई हैं वो सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और ग्लोबल लीडर्स भी हैं. सो एलुमनाई एसोसिएशन इन टैलेंटेड लोगों का जो यूज़ है वो कैसे करता है एक्सेलराई के ग्लोबल इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मनोज. ये दिस इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. वी ब्रिंग देम टू द इंस्टीट्यूट, connect them with the institute, and what we try to do is share knowledge, share experience, share learning, and also make them mentors to the current batches of students or current students, and help them also with getting to solve industry problems or social problems, and give them projects so that they stay relevant for the future. अमेजिंग. एंड एक खास बात ये भी है जो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इस साल गोल्डन और सिल्वर जुबली बैचेस कैंपस वापस आ रहे हैं, तो इन स्पेशल रियूनियंस का एक्सेलराई फैमिली के लिए क्या मतलब है? देखिए, जो 25 साल ख़त्म किए हैं, they are at the prime of their career. You have to understand, they are all in the age group of 42 to 47 or 50, and they are all in very high positions. वो लोग टाइम निकाल के 3 दिन 4 दिन के लिए यहाँ जमशेदपुर आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं ये आपको खुद आंसर करना पड़ेगा. वो लोग आ रहे हैं क्योंकि उनका एक्सेलराई का जो अट्रैक्शन है, जो मेमोरी है, जो यादें हैं, वो उनको यहाँ बुला के लाता है. सो वो लोग जब यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग में वही बचपना वापस आ जाता है. जो 25 साल पहले या 50 साल पहले जो एक दूसरे की खिंचाई करते थे या बदमाशी करते थे या जो भी करते थे, they want to do it again. They want to relive their old days. Now also in the process, while they are reliving and enjoying the old memories, they also have this special love for the institute. Because इसी institute के चलते वो लोग जहाँ पहुँचे हैं, ये institute का बहुत बड़ा योगदान है. So they want to do something for the institute.
सो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ. लाइक व्हेन बैच ऑफ 89 केम, उन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया ना कुछ जमा करके एक क्लासरूम अपने नाम से डेडिकेट किया. किसी और बैच ने एक दूसरा क्लासरूम डेडिकेट किया. थर्ड बैच ब्रॉट इन स्कॉलरशिप्स, 1.5 करोड़ का डिपॉजिट कर दिया, जिसमें से जो पैसा आता है दैट इज गिवन आउट इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप. इस तरह हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं जिसको वी गिव आउट एज almost 14 scholarships from the alumni side to the current batch of BM, HR, GMP and also for scheduled castes and scheduled tribes. So ये जो लोग आते हैं ये लोग कुछ दे के जाते हैं. सिर्फ अपना यादगाश और मज़ा is not the only objective. They also come back to give to the institute. सर एक अवार्ड है डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड्स. ये उन लोगों को मिलता है जो इंडस्ट्री और सोसाइटी में कुछ बड़ा करते हैं. ये अवार्ड एक्सेलराई कम्युनिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है और ऐसे लोगों को कैसे चुना जाता है सर? एक हॉलमार्क है हमारा होमकमिंग का, वो है डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड्स. ये जो डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड्स होता है, सब कोई चाहते हैं कि हम भी जीते, कि हमको भी हमारा पुराना स्कूल हमको रिकग्नाइज करे. ये क्यों रिकग्नाइज करते हैं? रिकग्नाइज करते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक्सेल का झंडा बहुत ऊंचा फहराया है और ये लोगों ने एक्सेलआरआई का नाम को चोटी तक ले गया. तो हम लोग इन लोगों को कैसे चुनते हैं? इसका एक प्रोसेस होता है. हम लोग अपना पोर्टल और थ्रू आवर नेटवर्क ऑफ अलुमनाई हम लोगों का एक प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन है जिसमें लोग नॉमिनेट करते हैं. नॉमिनेशन के बाद एक जूरी बैठती है. जूरी में डायरेक्टर हैं, डीन है, मैं हूँ और भी बहुत सीनियर प्रोफेसर्स हैं. हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि बंदे ने क्या किया है जिससे उसके कंपनी में कुछ ग्रेट बेनिफिट्स आया है, कंपनी का नाम बढ़ा है, एक्सेलआरआई का नाम बढ़ा है, एक्सेलआरआई के लिए क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट किया है, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज दिया है. सो ऑल दीज थिंग्स वी लुक एट एंड आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल दीज थिंग्स वी नॉमिनेट people for the Distinguished Alumnus Awards. Now, Distinguished Alumnus Award nomination is a difficult process. क्योंकि कोई पढ़ाता है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, राइट, तो कोई फिल्म में एक्टिंग करता है. कैसे दिया जाए? तो हम लोग कुछ कैटेगरी बनाए हैं. सो फर्स्ट इज यंग अचीवर, जो मान लीजिए 12 साल 15 साल के अंदर बहुत नाम कमाया है, उसको हम लोग डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड्स देते हैं. देन एकेडमिक्स, लोग पढ़ाते हैं, बुक्स लिखते हैं, हाँ बहुत पेपर प्रेजेंट करते हैं, उनको भी रिकग्निशन आता है. उनका जब नाम छपता है एक्सेलआरआई MBA लिखा जाता है. सो इट ब्रिंग्स नेम टू द कैंपस. सो एकेडमिक्स को हम लोग रिकग्नाइज करते हैं. कोई कोई अपना बिजनेस चालू करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं. जैसे मान लीजिए फार्मीजी इज ए एक्सेलआरआई ग्रेजुएट जो अपना स्टार्ट किया. वाओ. ग्रो इज ए एक्सेलआरआई ग्रेजुएट जो अपना स्टार्ट किया. मामाअर्थ एक्सेलआरआई ग्रेजुएट
अपना स्टार्ट, दिस आर ऑल यूनिकॉर्न्स। सो इन लोगों को रिकग्निशन तो देना ही पड़ेगा, तो हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर इज अनदर कैटेगरी। देन देर आर प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स, and after practicing managers we are also looking at people who are making a name in allied fields. Like I said, acting. XLRI से मिस्टर आकाश खुराना है, बहुत नाम कमाया एज एन एक्टर, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ प्ले राइट, उनको रिकग्नाइज करना है। मिस्टर MV रामन, आपने देखा होगा उनको चेन्नई एक्सप्रेस में, इज द प्रीस्ट, शाहरुख खान इसको दीपिका को लेके जाता है ऊपर टेम्पल में, Right. सो ही इज द प्रीस्ट, ही इज अ नेम इन एवरी तमिल हाउस होल्ड, तमिल मूवीज में, सो ही इज रिकग्नाइज। सो लाइक दैट देर आर मेनी हु हैव, somebody in music, somebody in painting, somebody in photography, so we also recognize them. And then last but not least, there is a category called Lifetime Achievement Award, जो continuously काम करता गया till retirement and he has excelled. So उनको हम लोग देते हैं। So now ये जो अवार्ड हम लोग होमकमिंग में देते हैं, बाकी लोग देखते हैं, इसका चर्चा होता है, तो दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हम लोग भी अच्छा करें, हम लोग को भी हमारा इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज करें इन फ्यूचर। करेक्ट। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, एक्सेलराई के जो एलुमनाई हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो एसोसिएशन उन्हें कैसे कनेक्टेड और एंगेज रहता है एट द वेरी सेम टाइम, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, ऐसे में एलुमनाई एसोसिएशन कैसे इंश्योर करता है कि ये वैल्यूज एलुमनाई के लीडरशिप में दिखते रहे? इसका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। इसका जवाब मैं 2-3 पार्ट में दूंगा। एक, मनोज जी, आजकल टेक्नोलॉजी सब चीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो हम लोगों ने भी अपना एक एलुमनाई पोर्टल बनाया है, और हम लोग एनकरेज करते हैं कि सारे एलुमनाई जहाँ भी हो वो हमारे पोर्टल में रजिस्टर करें। एक बार हमारे पोर्टल में वो रजिस्टर कर लेते हैं तो उनका कनेक्शन, उनका कॉन्टैक्ट्स, उनका कनेक्टिविटी हमारे साथ इम्प्रूव कर जाता है। वी आर एबल टू सेंड आउट मेल्स टू देम, दे आर एबल टू कम्युनिकेट नॉट ओनली विद अस, बट दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद द whole mass of alumni of their batch, people with similar tastes, like those who like playing music or those who like cricket, they can form their own groups. So technology helps us. एक पार्ट तो है टेक्नोलॉजी, दूसरा है फिजिकली हम लोग अपने आप को चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिए हैं, जहाँ हमारा साइजेबल मास ऑफ एलुमनाई है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, जमशेदपुर। इंडिया में हम लोग ये 7 सिटीज़ में अपना चैप्टर चलाते हैं। वहाँ बाकायदा चैप्टर का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, कमिटी है, और वो लोग साल में कुछ कुछ इवेंट्स अपना करते रहते हैं। And of those events, there are 2 or 3 important things which are common across all. So, एक इवेंट करते हैं जो समर मीट कहलाता है। ये समर मीट क्या होता है? इसमें जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना समर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंपनी में जाके 2 महीना काम करते हैं, और कंपनीज कैसे चलते हैं, कंपनीज का प्रोसेसेस वो सीखते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है कंपनी में, उसका सल्यूशन का टीम के लिए वो लोग पार्ट बन जाते हैं। सो ये लोग जब दूसरा सिटी में जाते हैं तभी उनको कुछ हैंड होल्डिंग ज़रूरत होता है, तो हमारे एलुमनाई वहाँ के ये हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, और हमारे एलुमनाई वहाँ के लोकल एलुमनाई उनको मेंटरिंग करते हैं,
गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ current students and alumni mixing actually ensures that Excel tradition and Excel culture and values get passed on. So ये एक हो गया चैप्टर, एक समर मीट हो गया. समर मीट के अलावे हम लोग एक रनाथॉन करते हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रन. ये हम लोग 75 इयर्स जब XLRI का हुआ तब शुरू किए. तो अभी जस्ट नाउ लास्ट वीकेंड आई वाज इन हैदराबाद. दिस वाज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट रनिंग इवेंट इन हैदराबाद. वी हैड नॉट मच, 1500 रनर्स, बट नेक्स्ट ईयर वी आर एमिंग फॉर 3000. Wow. The previous year we had only 500. So running is like, one is for health, one is for all alumni getting together and doing something, raising some money for the greater good. Greater good is what drives the institute. So we do that. They also have discussions or seminars on current topics, like let's say AI, machine learning. So अलग अलग चैप्टर्स अपना alumni के लिए, alumni के साथ ये सब सेशंस करते हैं. तो ये हो गया इंडिया में. आप बोले थे ग्लोबली, हमारा सिमिलरली सिंगापुर में एक चैप्टर है, दुबई में एक चैप्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत जगह चैप्टर है. वी हैव न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी विच इज़ वेरी बिग. वी हैव सैन फ्रांसिस्को बे एरिया विच इज़ बिग, सिएटल विच इज़ बिग, शिकागो विच इज़ बिग, Houston, which is big. We have Boston. We have Atlanta. So all these places we have different chapters, and they also dutifully hold annual meets. So the alumni stays connected, and when they hold their meets, somebody from the institute goes. So there is connectivity both ways. So this is another way of doing it, and we hope we will be able to intensify this in the future. Sir, I'm really enjoying all the conversation, the facts you're giving us. So lastly, I would like to ask कि आप प्रेसिडेंट के रूप में XLRI के एलुमनाई का अपना कॉलेज के लिए प्यार देख चुके हैं, एंड होम कमिंग 2025 के लिए आप ग्लोबल एलुमनाई कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट हियर देन यू हैव मिस्ड समथिंग ग्रेट. सो प्लीज़ बी हियर. December 6th and 7th are the dates. Please come here by the 5th. And the Golden Jubilee batch will stay on till 8th and 9th. And we'll have 4 days of undiluted fun. You can go back to the yesteryears, take your favorite walks. Even Dadu's, who was there in your old times, today has a proper establishment. So आइए, come, enjoy, have fun, and also give back to the institute. It's important that this institute has grown without a single copper from the government. It has grown on its own. It has grown based on the love, affection, and the generous help that society and alumni have provided to this institute. So come back, stay connected. The institute will benefit greatly, and so will you. Thank you. Sir, it's really a pleasure to have you on this podcast. We really enjoyed your conversation, the way you were answering all those questions. So आज के लिए इतना ही, एंड हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में XLRI में एक नए गेस्ट के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ. आप ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो सिटी को और देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच.